Good morning, children. Okay, now I believe that you all are well and fine. Okay, be at the home and be safe. Okay, now this video I am making as a revision video of your chapter number 6, that was changes around us. Okay, so I believe that before starting our worksheet, one of the revisions should be done. Okay, so now let's have a see chapter number 6, changes around us. Okay, now basically in this chapter we will study about the three different types of things: reversible and irreversible changes, okay, physical and the chemical changes, expansion and contraction. So these are the three topics on which basically the whole chapter will be focused. Okay, again I am going to say first number, that was reversible and irreversible changes. Second number, physical and the chemical changes. Third number, expansion and contraction. Okay, first of all, I would like to focus on reversible and irreversible changes. Let's have a see here. Reversible and irreversible changes. Now, what are the definitions? All the changes, those who can be reversed, they will be called as a reversible changes. We know a lot of examples during the explanation time. I had given all of you a lot of examples. Irreversible changes, all the changes, those who cannot be reversed, they will be called as a irreversible changes. Now let's have a see some of the examples. By seeing the examples, I will explain you that how they are reversible and how they are irreversible. First of all, these are the three examples of reversible changes. That was evaporation, condensation and boiling. Okay. Now say evaporation. How the evaporation can be considered as a part of reversible change? Because in the evaporation, the material is not going to change its nature. If I will take the example of water, then the evaporation of the water will become a cause to convert water into the water vapor. ओके, मतलब वाटर वेपर में चेंज होगा. वाटर को अगर आपने गर्म कर दिया और वो वाटर वेपर में चेंज हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वाटर पेट्रोल बन गया या डीजल बन गया या उसने अपना केमिकल नेचर लूज कर दिया. जब वो लिक्विड स्टेट में था उस समय भी वाटर था, और जब उसने अपना स्टेट चेंज किया फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो इस स्टेट में भी वो गैशियस स्टेट में भी वो वाटर ही है. ठीक है, तो जब वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल था उस टाइम पर भी वो वाटर था, और गैशियस फॉर्म में आने के बाद में भी वो वाटर ही है. सो इवापोरेशन विल बी कंसीडर्ड एज अ वन ऑफ द टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज. मतलब मान लो लिक्विड को आपने गैशियस में कन्वर्ट कर दिया, तो उस गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर को कंडेंस करके वापस आप लिक्विड को गेन कर सकते हो. दैट वाज द नेक्स्ट नंबर, कंडेंसेशन. ओके, बेसिकली इन द नेचर, मतलब हमारे नेचर में इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों को हम साथ में डील करते हैं, मतलब दोनों साथ में होते हैं. इवापोरेशन अगर हुआ है तो कंडेंसेशन भी होगा ही होगा. थर्ड नंबर, बॉइलिंग. बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन आई विल सप्लाई हीट. और हीट सप्लाई करने से हमेशा सब्सटेंस अपना नेचर लॉस कर देता है. इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. ओके, बॉइलिंग का मतलब जैसे मान लो मेरे पास वाटर है, ठीक है, वाटर को मैंने हीट सप्लाई किया. अब हीट सप्लाई करने से वो सारा का सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया. तो बॉइलिंग, और अगर आप बॉइलिंग को देखो, किसी भी वाटर को अगर आप बॉयल होता हुआ देखोगे तो वो नॉर्मल वाटर से आपको अलग नज़र आएगा. उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा. तो टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वो वाटर नहीं है. पहले वो वाटर था और अब वाटर नहीं है, ऐसा नहीं है. वो पहले भी वाटर था और अभी भी वाटर है. ठीक है, तो these three phenomena will be considered as a part of reversible changes. That was evaporation, condensation and the boiling. Now irreversible changes means the changes which cannot be reversed. First example, the blooming of flower. अब एक बेसिकली देखो, जितने भी फ्लावर्स होते हैं, जैसे हमारे नेचर में जितने भी प्लांट्स हैं, उन सभी प्लांट्स में बिना फ्लावर के कोई फ्रूट तो आता नहीं है. बिना फ्लावर के फ्रूट तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले फ्लावर आएगा, उसके बाद उसके पीछे पीछे फ्रूट आएगा. तो फ्लावर अगर एक बार ब्लूम हो जाता है तो क्या उसको वापस से कंडेंस करके, उसको वापस से कॉन्ट्रैक्ट करके आप उसको उसके बर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है. दैट वाज इरिवर्सिबल चेंज. द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इज अ इरिवर्सिबल चेंज. किसी भी फ्लावर, कोई भी फ्लावर अगर एक बार ब्लूम हो गया, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करके वापस बर्ड कंडीशन में नहीं ला सकते. इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट नंबर, मिल्क स्पॉइल. जैसे आमतौर पे क्या होता है, रात में आप लोग जैसे मिल्क पीते हो, ठीक है, मम्मी दूध देती है पीने के लिए,
या सुबह, तो चलो सुबह आपने दूध पिया और बाई चांस मम्मी के दिमाग से निकल गया कि फ्रिज को हमें ये दूध को हमें फ्रिज में रखना है, ठीक है, और बाई चांस वो मिल्क बाहर रह गया, तो बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल बायोटिक फैक्टर्स, हमारे एनवायरनमेंट में कई तरह के बायोटिक फैक्टर्स हैं, ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको कहा जाता है, जो बेसिकली हर तरह के सब्सटेंसेस के र्यूनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज एंड वायरसेस, ये उस मिल्क को अटैक करेंगे और उस मिल्क के नेचर को चेंज कर देंगे, ठीक है, दैट वाज स्पॉइलिंग ऑफ द मिल्क। एक बार अगर मिल्क स्पॉइल हो गया तो क्या उस मिल्क को वापस आप उसकी प्रीवियस कंडीशन में ला सकते हो? नहीं ला सकते, दैट वाज इरिवर्सिबल चेंज। बर्निंग ऑफ द पेपर, पेपर को आपने एक बार बर्न कर दिया, तो बर्न करने के बाद क्या बनेगा उससे? एशेस, तो क्या उस ऐश को वापस से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? नो, दैट वाज इरिवर्सिबल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, खाने को आपने एक बार पका दिया, पकाने के लिए आप हीट का यूज़ करते हो, मतलब आपने हीट का यूज़ किया और फूड में आपने कुछ ऐसे चेंजेस लाए जो कि रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, जैसे दोपहर में आप चावल खाते हो, तो एक बार अगर चावल पक जाए और आप ये सोचते हो कि उस चावल को हम दोबारा से धूप में सुखा देंगे और दोबारा से हम उसको पका सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन जब आप उसको धूप में सुखाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले की तरह नहीं होगी, उसके स्वाद में चेंज आ जाएगा, उसके टेस्ट में डिफरेंसेस आ जाएंगे, वो नए चावल की तरह आपको नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो दीज वर द सम ऑफ द एग्जांपल्स अबाउट द रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल चेंजेस। आवर नेक्स्ट बिग टॉपिक दैट वाज द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। देखो बेटा, ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस मोटे मोटे तौर पे अगर आप बोलो तो कुछ बातों को छोड़ करके, अगर आप उन बातों को अगर आप छोड़ दो तो बेसिकली फिजिकल और केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस का ही दूसरा फॉर्म है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे देता हूँ। ऑल द फिजिकल चेंजेस जनरली all the physical changes are reversible and all the chemical changes will always be irreversible। हमारे नेचर में होने वाले सारे के सारे केमिकल चेंजेस हमेशा इरिवर्सिबल होंगे और हमारे नेचर में होने वाले फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होंगे, सारे नहीं लेकिन मैक्सिमम, ठीक है। अब एक एक करके हम इसके बारे में देख लेते हैं। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मार्केट में जाते हो आइसक्रीम खाने के लिए, ठीक है, आइसक्रीम वाले भैया आपको आइसक्रीम देते हैं, आप वो आइसक्रीम अपने हाथ में लेते हो, पैसे देते हो, इन द मीन टाइम वो आइसक्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक, धीरे धीरे वो आइसक्रीम मेल्ट होती है। तो मेल्ट होने का मतलब क्या उस आइसक्रीम ने अपने नेचुरल उसका जो केमिकल नेचर था, मतलब जब वो सॉलिड फॉर्म में थी तब वो आइसक्रीम थी, अब वो मेल्ट हो गई तो पेट्रोल बन गई, ऐसा होगा क्या? ना, द मेल्ट आइसक्रीम टेस्ट विल ऑल्सो बी लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम चाहे मेल्ट हो या ना हो, वो आइसक्रीम की तरह ही बिहेव करेगी। और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। इफ आई विल टेक सम ऑफ द आइस क्यूब्स, उस आइस क्यूब्स को मैंने एटमॉस्फेयर में रख दिया ओपन, ठीक है, कुछ देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने के साथ साथ वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, पहले उसका स्टेट था सॉलिड लेकिन अब उसका स्टेट हो रहा है लिक्विड। तो क्या अब वो वाटर नहीं है? मतलब पहले सॉलिड था तो वाटर था आइस के फॉर्म में, अब वो मेल्ट हो गया तो क्या वो वाटर नहीं है ना? दैट वाज अ फिजिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज में याद रखना बच्चों, ऑल द थिंग्स दोज हु विल शो फिजिकल चेंज दे विल नेवर चेंज देयर नेचुरल प्रॉपर्टी। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, और यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग आपने समझ लिया। फ्रीजिंग, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ आइस व्हिच आई हैव गिवन टू ऑल ऑफ यू। कटिंग, अब देखो आई कैन शो यू द लाइव एग्जांपल्स, जस्ट अ मिनट। सी, this is the piece of a paper, okay. I am saying cutting is a physical process, means whenever the physical shape and size of the substance will get change, then I will say that change is a physical change। मतलब किसी सब्सटेंस में अगर कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा, उसके फिजिकल शेप एंड साइज में चेंजेस आएंगे, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? फिजिकल चेंज। ओके, अब देखो ये पेपर आप लोग देख रहे हो,
द फिजिकल शेप एंड साइज ऑफ द पेपर इज लाइक दिस, आप लोगों के सामने है। ओके, द फिजिकल शेप एंड साइज ऑफ द पेपर इज लाइक दिस। ओके, अब देखो, now see, previously also it was a paper, and right now also it is a paper. Then what was the change? The physical shape and size of the paper has been changed. इसका फिजिकल शेप पहले बड़ा था, अब इसका शेप छोटा हो गया। That was a physical change. It can be reversible, yes. The property of the paper has not lost its property. इस पेपर का जो केमिकल नेचर है, द केमिकल नेचर ऑफ द पेपर हैज़ नॉट बीन लॉस्ट। जब ये पेपर बड़ा था उस समय भी पेपर था, और अब इसको टॉर्न करने के बाद जब इसका साइज छोटा हो गया है तो भी ये पेपर ही है। पहले भी पेपर था, टॉर्न होने के बाद भी पेपर है। व्हाट डज इट मीन? इट इज़ अ फिजिकल चेंज, इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। नो केमिकल प्रॉपर्टी विल बी चेंज, ओनली द फिजिकल शेप एंड साइज ऑफ द सब्सटेंस विल गेट चेंज। बात समझ में आई? बेंडिंग, किसी भी चीज़ को अगर आप बेंड करते हो, ठीक है, तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। मतलब फिजिकल उसका शेप और साइज आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। स्लाइसिंग मतलब होता है कट करना। जैसे घरों में जब आप मम्मी सब्जी जब काटती है तो पोटैटोज़ को फ्राई करने से पहले, ईट करने से पहले आप उसको कट करते हो। तो कट करते हो तो क्या पोटैटोज़ का नेचर चेंज हो जाता है? क्या वो कट करने से पहले पोटैटो था और कट करने के बाद में पोटैटो नहीं है, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो पहले भी पोटैटो था और बाद में भी पोटैटो ही है। तो स्लाइसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ओके, मेकिंग ऑर्नामेंट्स, आप ऑर्नामेंट्स बनाते हो, किसके बनाते हो? मेटल के बनाते हो। मेटल के लिए आप किसका यूज़ करोगे? या तो गोल्ड का या तो सिल्वर का। तो गोल्ड और सिल्वर पहले भी था, हमने जब उसको अर्थ से निकाला था तो वो हमें गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में मिला। और ऑर्नामेंट्स आप जब बनाते हो, आप सिर्फ केवल उस गोल्ड और सिल्वर का फिजिकल शेप एंड साइज चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड कैटलॉग्स ऑफ द ऑर्नामेंट्स। लोगों को जिस तरह के ऑर्नामेंट्स पसंद हैं उस तरह के ऑर्नामेंट्स आप बनाते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो या फिर अगर आप लोगों को मालूम हो तो आप जब कभी भी मार्केट में ऑर्नामेंट्स परचेज करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपसे मेकिंग चार्ज दिया जाता है। दे विल टेक द मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज का मतलब क्या होता है? उसको बनाने का चार्ज। क्योंकि जो उसका रॉ मटेरियल है दैट वाज द गोल्ड। गोल्ड तो जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो गोल्ड को मार्केट से खरीदता है। मार्केट का जो प्राइस होता है, मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग वो उससे परचेज करता है। तो उसकी अपनी कमाई क्या होगी? दैट विल बी द मेकिंग चार्जेस। उस ऑर्नामेंट को बनाने में जितने उसको मेहनत लगती है वो आपसे लेता है एज अ मेकिंग चार्जेस, ठीक है। सो क्या, तो मेकिंग ऑर्नामेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास, ग्लास टूट गया, किसका था? कांच का था। ग्लास टूट गया तो टूटने के बाद क्या आप उसको दोबारा जोड़ सकते हो? अगर ये ग्लास प्लास्टिक का होता तो क्या तो भी ये फिजिकल चेंज तो होता, लेकिन रिवर्सिबल होता। अब बिकॉज द ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास, चलो मैं ग्लास की बात, चलो पानी पीने वाले ग्लास की हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ हमारे खिड़कियों में जो ग्लास लगता है, वो ग्लास अगर टूट जाए देन दैट इज द फिजिकल चेंज। क्योंकि पहले उसका शेप एंड साइज बड़ा था, लेकिन अब टूटने के बाद उसी ग्लास के बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स हो गए। पहले वो बड़ा था लेकिन अब छोटा हो गया। तो फिजिकल शेप एंड साइज ऑफ द ग्लास हैज बीन चेंज। ओके, सो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नंबर देखिए, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या क्या होते हैं? केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? अ चेंज दैट विल लूज इट्स chemical property, that will be called as a chemical change. Okay, फर्स्ट नंबर, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्ट होना मतलब आयरन में जंग लगना। अगर आयरन में जंग लग गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, आफ्टर द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन विल नॉट बिहेव लाइक एन आयरन पीस, द आयरन विल लूज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ आयरन। आयरन अपनी आयरन वाली प्रॉपर्टी को लूज कर देगा क्योंकि अब ये आयरन नहीं रह गया, ठीक है। बर्निंग ऑफ द एलपीजी,
एलपीजी सिलेंडर्स सभी के घरों में है। सिलेंडर्स में जो एलपीजी गैस आती है, आपने उसको एक बार बर्न कर दिया, तो बर्न करने के बाद अगर आप ये सोचो कि जिस गैस को मैंने बर्न किया था वो गैस मुझे वापस मिल जाए, या फिर उस गैस से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला था उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ला करके मैं दोबारा वो गैस बना दूंगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज द एलपीजी हैज़ चेंज इट्स नेचर। एलपीजी ने अपना नेचर चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नंबर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? इन ऑल द एनिमल्स, बेसिकली इन ऑल द एनिमल्स। प्लांट्स में भी होता है, लेकिन प्लांट्स में रात के वक्त में होता है, और एनिमल्स में तो दिन रात हमेशा होता है। रेस्पिरेशन की वजह से हमारे अंदर के फूड मटेरियल्स के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं कि वो फूड मटेरियल से एक बार एनर्जी बाहर आ जाती है, फिर उस बचे हुए फूड सब्सटेंसेस से वापस से आप फूड नहीं बना सकते। ठीक है, दैट वाज द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन अगर केमिकल प्रोसेस नहीं होता तो हमें जो आज एनर्जी मिलती है वो नहीं मिलती। ठीक है। कर्लिंग ऑफ द मिल्क। मिल्क का कर्लिंग होना मतलब जब आप उसमें दही जमाते हो मिल्क में, तो एक बार आपने, अच्छा यू ऑल नो दैट द कर्ड ऑफ द मिल्क इज हैविंग द बैक्टीरिया नोन एज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दिस इज द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड। ठीक है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये जो कर्लिंग ऑफ मिल्क आप देख रहे हो, किसी मिल्क को एक बार आपने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, अब आप ये एक्सपेक्ट करो कि उस कर्ड से मैं वापस से मिल्क बना लूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल नेवर बी पॉसिबल। ठीक है, दैट वाज द कर्लिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, याद रखना बेटा, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ बर्निंग ऑफ कैंडल। सी, द मेल्टिंग ऑफ कैंडल विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ केमिकल चेंज। प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनो। Burning of candle will be considered as a part of chemical change and melting of candle will be considered as a part of physical change. कैंडल को देख करके आपके मन में दो तरह की चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल, द शेप एंड साइज ऑफ द कैंडल इज गोइंग टू बी अ डिक्रीज, ओके, एंड द वैक्स विच इज इन द कैंडल इज गोइंग टू बी अ मेल्ट आउट। भाई कैंडल के अंदर जो वैक्स है वो मेल्ट हो रहा है। अगर वैक्स के मेल्ट होने की अगर आप बात करते हो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग ऑफ द वैक्स ऑफ द कैंडल, देन योर वर्ड्स विल बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि वैक्स मेल्ट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, इसलिए वो मेल्ट हो जाता है, दैट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। ठीक है, मेल्ट होता है, अच्छी बात है, होना चाहिए मेल्ट, लेकिन उसके मेल्ट होने से वो फिनिश नहीं होता। वो फिनिश कैसे होता है? बर्न होने से। दैट वाज द बर्निंग ऑफ कैंडल। आप लोग खुद सोचो, अगर बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज नहीं होता तो क्या आपको लाइट मिलती? नहीं मिलती। ठीक है ना? अगर बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज नहीं होता तो क्या कैंडल का साइज कभी खत्म होता? एक कैंडल अगर आप बर्न करते तो क्या वो कैंडल कभी खत्म होती? नहीं होती। वो खत्म किस लिए होती है? बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंजेस, कि उसके अंदर का वैक्स अपने आप को दूसरे गैसेस में कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लेम जल रही है, जिसकी वजह से आपको लाइट मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके केमिकल चेंजेस के। नाउ लेट्स हैव अ सी द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट वाज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द टू फिनोमेना which will be found in all the matter on the earth। हमारे अर्थ पे मिलने वाले हर तरह का मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, in all the matter these two phenomena we will get it, okay, just a minute। yes, okay, so now let's have a see कि how these two phenomena will work in all the three forms। okay, हमारे जो तीन तरह के फॉर्म्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इसमें किस तरह से ये काम करते हैं और हमारे लिए ये बेनिफिशियल हैं या फिर नहीं हैं, और क्या पूरा क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम जानते हैं। लेट्स हैव अ सी एक्सपांशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर विल गो
away from each other, then that will be called as a expansion. And whenever the particles will come closer to each other, then that will be called as a contraction. Clear? Whenever the particles of the matter will move away from each other, that will be called as a expansion. Whenever the particles will come closer to each other, then that will be called as a contraction. Okay? Now expansion and contraction, they both will be found in the solid. अब सॉलिड के केस में अगर आप एग्जांपल्स देखोगे, देन रेलवे ट्रैक्स, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन द एक्सपांशन. अब देखो रेलवे ट्रैक्स की अगर आप बात करो तो रेलवे ट्रैक्स के बीच में अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जो रॉड होता है, उस रॉड के बीच में जो इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स हल्का सा गैप छोड़ते हैं कि मतलब एक जो रेलवे ट्रैक है, देखो ये जो रेलवे ट्रैक है ये यहाँ से चल रही है, फिर यहाँ पे गैप होगा, फिर यहाँ पे चल रही है, फिर यहाँ पे गैप होगा, फिर यहाँ पे चल रही है, फिर यहाँ पे गैप होगा. ठीक है? तो ये जो आप देख रहे हो ना गैप, दिस गैप एंड दिस गैप, these gaps are being kept here in order to allow expansion during summer days. क्योंकि समर डेज में आप जानते हो कि हॉटनेस कितनी ज़्यादा होती है. इतनी ज़्यादा हॉटनेस की वजह से आयरन पीस अपने आप को एक्सपांड करेगा. अगर वो एक्सपांड करेगा और आपने स्पेस नहीं छोड़ी है, देन द रेलवे ट्रैक विल बिकम बेंड. रेलवे ट्रैक्स बेंड हो जाएंगे और ट्रेन के उतरने के चांसेस रहेंगे. ठीक है? तो जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो बेंड ना हो जाएं, वो नॉर्मल रहें. ठीक है? जो नॉर्मल सारी जो पूरी व्यवस्था चल रही है वो नॉर्मल रूप से चलती रहे. तो एज अ प्रिकॉशन वी आर कीपिंग अ स्मॉल स्पेसेस इन द रेलवे ट्रैक्स. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एक्सपांशन इन द सॉलिड, कि मतलब सॉलिड सब्सटेंसेस में एक्सपांशन होता है. ओके. अब सॉलिड में कॉन्ट्रैक्शन भी होता है. यस. ब्रेकिंग ऑफ हॉट ग्लास, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, जैसे आपके घर में अगर चाय पीने वाली जो प्याली होती है, वो प्याली अगर चिकनी मिट्टी की है तो ठीक है, स्टील की है तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो ग्लास की है, ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे जब आप उसमें चाय डालते हो तो चाय को हल्का सा डाल करके उसको हिलाया जाता है, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि उसका जो बेस होता है वो निकल जाता है. वाई? बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द हॉट ग्लास, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है? ग्लास एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जिसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में तो रहते हैं, लेकिन हॉटनेस और कोल्डनेस का इम्पैक्ट और उसका प्रभाव तुरंत सब पे नहीं पड़ता, वक्त लगता है. जैसे आपने चाय की प्याली में चाय डाली, ठीक है, तो प्याली का जो इनर सरफेस होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जो बाहर वाला सरफेस है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा. बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, तो अंदर वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो एक्सपांड करेंगे, लेकिन बाहर वाले पार्टिकल्स एक्सपांड नहीं करेंगे. सॉलिड में सारे पार्टिकल्स एक साथ एक्सपांड करते हैं और एक साथ कॉन्टैक्ट करते हैं. अगर सारे पार्टिकल्स एक साथ एक्सपांड और कॉन्टैक्ट अगर नहीं करेंगे, देन दैट सॉलिड सब्सटेंस विल गेट ब्रोकन डाउन. दिस वाज एग्जांपल ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हॉट ग्लासेस. ठीक है? और आप लोग ये बोल सकते हो कि ग्लास के केस में, अगर मैं ग्लास की बात करूं, ये हॉट ग्लास जो टूट जाते हैं तो बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ओके, become reason for the breaking of the hot glasses. Let's have a discuss about the liquid. अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो देखो समर के सीज़न में कभी न कभी सबको बुखार आता है, तो भाई आज के ज़माने में तो हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर्स अवेलेबल हैं. लेकिन अगर आप आज से थोड़ा पहले की बात करो, आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर क्लिनिकल थर्मामीटर्स का यूज़ किया जाता है. तो क्लिनिकल थर्मामीटर्स बनाने का जो हमारा बेस था, हम क्लिनिकल थर्मामीटर को बना पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द दिस प्रॉपर्टी, दैट वाज द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द लिक्विड. अगर मैं लिक्विड की बात करूं और लिक्विड में अगर मैं थर्मामीटर का एग्जांपल लेता हूं, देन आई हैव टू टेल दैट आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ मर्क्यूरी. ओके, mercury is one of the metals which is available in the liquid state. You all know that all the metals will be found always in the solid state except mercury. Okay, mercury में जब एक्सपांशन होगा तो इस एक्सपांशन को मैंने थर्मामीटर के फॉर्म में यूज़ करके, थर्मामीटर के अंदर यूज़ करके एक
टेम्परेचर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट बना दिया, ठीक है ना। तो थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी का एक्सपांड होना, दैट वाज एग्जांपल ऑफ एक्सपांशन इन द लिक्विड, और थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी का कॉन्ट्रैक्ट होना, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड, ठीक है। नाउ से इन द गैस, गैस के केस में अगर आप देखोगे तो बलून का साइज, मान लो आपके पास एक बलून है, कोई बलून अगर आप मार्केट से लेके आते हो, ठीक है, उसमें आप थोड़ी हवा भर दो, हवा भरने के बाद सनी डेज में कुछ देर के लिए आप उसको अपने घर के बाहर रख दो, किसी चीज़ से बांध करके, अदरवाइज उड़ जाएगा, ठीक है। आप देखना कि उसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वाई, बिकॉज ऑफ एक्सपांशन। उस बलून के अंदर की जो गैसेस थी, कौन सी गैस होगी, एटमॉस्फेरिक एयर, ओके। एटमॉस्फेरिक एयर के जो पार्टिकल्स थे, जब वो सनलाइट के कांटेक्ट में आए, उन्होंने अपने आप को एक्सपांड किया, ठीक। जब वो अपने आप को एक्सपांड करेंगे तो क्या वो बलून से बाहर निकल सकते हैं, नहीं। तो बलून से बाहर नहीं निकल सकते, तो वो बलून में एक जगह खोजते हैं बाहर निकलने के लिए, जिसकी वजह से बलून का साइज हल्का सा बड़ा हो जाता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपांशन इन द गैस, दैट वाज बलून साइज इंक्रीजेस अंडर सनी डेज, अंडर सनी लाइटेड सन। कॉन्ट्रैक्शन, अब उसी बलून को अगर आप घर के अंदर लेके आ जाओ तो कुछ देर के बाद आप देखना कि पहले के कंपैरिजन में अब उस बलून का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। क्यों भाई, बलून के अंदर की जो एयर है उसको हमने चेंज नहीं किया, वो वही है जो वो पहले थी, वो अभी भी वही है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट। पहले मैं उसको हॉट में लेके गया था, वहाँ पर क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। फिर मैं उसको घर में लेके आ गया, वहाँ पर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। एक्सपांशन की वजह से बलून का साइज बड़ा हो गया, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बलून का साइज छोटा हो गया। बलून का साइज बड़ा और छोटा करने वाला जो पार्टिकल्स हैं वो सेम है, लेकिन उनके बीच के होने वाले एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बलून का साइज बड़ा और छोटा हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6, दैट वाज द चेंजेस अराउंड अस। इसमें बेसिकली हम लोगों ने 3 तरह की बातों पर फोकस किया, रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। सो नाउ लेट्स हैव अ सी, दिस वाज योर रिवीजन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 6, ठीक है। अब आगे के जो वीडियोस होंगे आपके, वो आपके वर्कशीट के होंगे। वर्कशीट के पास फिर अगेन आपका जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिवीजन वीडियो दूंगा। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू। एंड अगेन आई वांट टू से, बी एट द होम, बी सेफ एंड बी साउंड एंड बी रेगुलर विथ योर स्टडीज, ओके। दिन भर उधमबाजी नहीं, ओके, ओके।